guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज I am back with a new style of video where I am going to review Sejal Kumar's What I Eat in a Day video. Sejal Kumar is a very popular fashion, lifestyle, entertainment YouTuber और आज मैं करने वाली हूँ उनके डाइट का रिव्यू. What she eats in the entire day. I'm going to go over it and give you my advice on what you can improve and what she is doing right. So let's dig in. Usually सुबह उठ के जिम जाती हूँ. Working hard, but मैं आज थोड़ा late उठी because I thought I'll go in the evening. I like bother my body in the morning when I've not got enough sleep. So सुबह उठते I usually have 2 glasses of water. I feel very good when I have glasses of water in the morning, but अभी तक मैंने पिया नहीं. And I just had a chiku in the morning. Very good practice. She drinks a lot of water in the morning. Very good habit. Another thing that you can do is either you can make a jeera water, coriander water. या फिर काढ़ा बना के पी सकते हैं. तो वो जो होता है वो आपको पानी के ऊपर और एडिशनल बेनिफिट्स देगा. एक बॉटल सामने रख के रख देती हूँ and I keep refilling it and I try to finish like 3 of these in a day. If you are trying to increase your water intake, this is a very good habit that she is following कि वो एक water bottle अपने साथ रखती है and then wherever she goes she just drinks from that water bottle. ये आपको help करता है टू सी कि आप कितना पानी पी रहे हो, उसको मेजर करने में हेल्प करता है. एंड एट द सेम टाइम इट्स अ रिमाइंडर ऑल्सो, सो यू डोंट नीड एन एडिशनल रिमाइंडर ऐप टू कीप रिमाइंडिंग यू कि आपको पानी पीना है. बट अगर आपके सामने वाटर बॉटल होगा सो यू कैन कीप सिपिंग इन. द वन थिंग दैट आई कैन नॉट स्टॉप नोटिसिंग इज कि उसकी टेबल पे एक बुक रखी हुई है विच इज द सेम बुक दैट आई एम करेंटली रीडिंग. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम रीडिंग दिस बुक एंड शी इज probably she has already read it. It's called The Magic of Thinking Big by David Schwartz. So it's an amazing book. I am almost done with this and this is an amazing book. If you are looking for a good book to read this year, do give this one a shot. So for breakfast, I am having this chia seeds ka pudding, which is very good. It's very simple to make. बस बहुत सारे chia seeds किसी भी market में मिल जाते हैं. You should just realize use soy milk. I don't like normal milk. Really like soy milk. Normal milk makes me feel very weird in my stomach, so I started drinking soy milk, vanilla flavor mein. And you just mix it really well. And on the side, I'm eating bananas and kheera. I don't know why दीदी ने खीरा काट दिया है, but whatever. प्यार से काटा है तो मैं खा लूँगी. Because I also go to the gym and all, and so it's good to eat eggs. After that also, I love eating boiled eggs. So I'm having 2 boiled eggs with the yolk inside. A little bit of like sauteed vegetables, ये baby corn and red and yellow वाला capsicum है. I think दोपहर के लिए कुछ बनाना है. वो बच्ची कुछ सब्जी मुझे भी दे दी. That's it. Breakfast looks really good. I like the fact that she is included कि इसमें chia seeds हैं, so you are getting good fat. Soy milk use किया है, you're getting good protein. Eggs also is providing you good protein and good source of fat. So overall in this breakfast, I think there is about 20 grams of protein that she is consuming. अगर आपको नॉर्मल मिल्क सूट नहीं करता है, इफ यू फील ब्लोटेड, इफ यू फील लिटिल बिट ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम, देन आप उसकी जगह पे सोय मिल्क या आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क ट्राई कर सकते हैं. बट इफ यू आर ओके विद नॉर्मल मिल्क, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई यू नीड टू स्विच योर हैबिट्स टू अदर टाइप्स ऑफ मिल्क्स. लेकिन एक चीज जो है जो इस ब्रेकफास्ट में मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो ये है कि जो सोया मिल्क शी इज यूजिंग वो एक फ्लेवर्ड सोया मिल्क है विच इज द वेनिला फ्लेवर. आई थिंक शी इज यूजिंग ऑल द फ्लेवर्ड मिल्क और फ्लेवर्ड योगर्ट दैट यू गेट इन द मार्केट. दीज कम विद अ लॉट ऑफ शुगर. 200 ml of this soy milk has about 22 grams of sugar. She is eating everything good. पूरा breakfast बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बट ये अननेसेसरी 22 ग्राम का शुगर उसमें ऐड हो गया है. इसकी जगह पर अगर आप नॉर्मल सोया मिल्क यूज करें एंड देन यू कैन यूज शुगर और जैगरी और वट एवर यू वॉन्ट टू यूज, यू कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ दैट. तो एटलीस्ट आपको कंट्रोल रहेगा कि आप कितना शुगर उसमें ऐड कर रहे हैं. एंड उसमें तेल कम और मिर्ची कम, क्योंकि मुझे हिचकियाँ आती है मिर्ची ज़्यादा खा के. So I like the fact that she doesn't use much of oil, much of spices in her food. There is a big reason for it, क्योंकि स्पाइसेस यूज़ करने से अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी क्रेव करती है शुगर का या मीठी चीज़ों का. क्योंकि जब आप स्पाइस खाते हैं इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी एंड देन योर बॉडी ट्राइज टू कूल डाउन, कॉम्पनसेट फॉर इट बाई क्रेविंग फॉर शुगरी foods. So if you avoid eating lot of spices, then आपको शुगर की क्रेविंग भी उतनी नहीं होगी. So keep your food simple. It will be much healthier for you. This is what we have. Quinoa. उसके अंदर I've put red and yellow capsicum and baby corn. काट के sauteed. So quinoa is like a healthy alternative for rice. With that I'm having orange. तो मुझे हमेशा किसी भी मील के बाद मीठा खाना थोड़ा अच्छा लगता है. So I'm having a big bowl of it because I like this meal जिसमें किनोआ है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं,
तो इट्स ओवरऑल लुकिंग वेरी हेल्दी. द वन थिंग दैट आई एम मिसिंग कि उनका ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा बैलेंस था जिसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन था, बट आई डोंट नो वाई कि ये जो लंच है इसमें प्रोटीन का क्वांटिटी क्यों बहुत कम है. क्योंकि इवन इफ शी ईट्स लाइक 2 bowls ऑफ किनोआ, बॉयल्ड किनोआ, उसमें हार्डली आपको 6 to 10 grams ऑफ प्रोटीन आता है. किनोआ इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बट आई कैन नॉट से कि किनोआ इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक राइस का रिप्लेसमेंट है. तो इसमें फाइबर्स हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट प्रोटीन का क्वांटिटी नहीं है. और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या इवन इफ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर वेट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंज्यूम एटलीस्ट 1 to 1.2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन. सो अगर आप उतना प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपका ओवरऑल जो बैलेंस्ड मील है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है. और इस पर्टिकुलर मील में आई एम सॉरी बट प्रोटीन का क्वांटिटी नो. I am back home. मैं बाहर गई थी डे टाइम में to the Google office because I had a meeting with my partner manager there. And in terms of what I ate, मैंने वहाँ पे एक कॉफ़ी पी थी. Through the day मैंने बिल्कुल भी बीच में स्नैक्स खाना बंद कर दिया है, which may or may not be a good thing. तो मेरा overall खाने का intake काफ़ी कम हो गया है. So I need to fix that, like probably with boiled eggs or sprouts. If you have lot of meetings, you have to go to places, you have to meet a lot of people. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्नैक है वो आप अपने साथ कैरी करो इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउटसाइड. तो इसलिए आई वोंट से कि आपको स्नैक को स्किप करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी स्नैक इंस्टेड ऑफ ईटिंग outside food or packaged snacks. There are a lot of nuts that you can always carry. You can carry peanuts, almonds, walnuts, raisins, you can have roasted मखाना. ये छोटे से एक बॉक्स में आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और आपको बाहर की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हंग्री नहीं फील करता है बाय द टाइम आप डिनर करते हो. So for dinner, दीदी ने बनाया था I think भिंडी and I think रोटी. मैं usually try करती हूँ that I don't eat rice in the night, like I put on weight उसकी वजह से. तो मैं रात को ट्राई करती हूँ कि मैं रोटी खाऊँ या फिर कोई भी रोटी या चावल में से कुछ भी ना खाऊँ. I probably used to have a salad or sauteed vegetables or even quinoa. Oh God, this is a big myth. I didn't expect this to come, but okay. The one big problem is कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो रोटी खाएंगे इंस्टेड ऑफ राइस तो वो हेल्दियर है, या फिर उनको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एलिमिनेट कर देने चाहिए अपने डिनर में से, क्योंकि अगर वो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो अपने डिनर में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं. प्लीज़ गाइज, इट्स अ बिग मिथ. Okay, you do not have to eliminate the things that you love from your diet. It's all about portion control. अगर आपको राइस अच्छा लगता है आप राइस खाओ, आपको रोटी अच्छा लगता है आप रोटी खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये completely एलिमिनेट कर देना है. राइस खा के मोटे हो जाएंगे. Oh my God, there is so much content out there कि अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि रोटी या राइस खाने से ऐसे कोई मोटा नहीं होता है. It's all about calorie deficit. अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपको जो भी खाना पसंद है आप खाइए. अगर आपको किनोआ अच्छा लगता है आप खाइए, आपको किनोआ नहीं अच्छा लगता है कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको खाने से. बट वॉट यू नीड टू डू इज़ कि अगर आप राइस या रोटी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ में बहुत सारा वेजिटेबल कंज्यूम करें. तो सेजल कुमार को मैंने देखा कि वो पूरे अपने दिन में शी हैज़ मेंटेन गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू आउट द डे. उन्होंने हर मील में अच्छे वेजिटेबल्स कंज्यूम किया है. द वन थिंग दैट अगेन इन दिस मील दैट आई फाइंड मिसिंग इज प्रोटीन. तो पूरे दिन में दाल नहीं खाया है, कोई राजमा या छोले या इस टाइप का कोई करी भी इंक्लूड किया जा सकता है इधर इन द डिनर और लंच, वॉट एवर इज सूटेबल, बट वो नहीं है. एटलीस्ट आपको कुछ प्रोटीन मिलेगा. एंड ऑल्सो क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है largely goes around carbohydrate. You have to make a conscious effort कि आप किसी तरीके से उसमें प्रोटीन ऐड करें. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो फर्स्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है इट कम्स फ्रॉम योर सोया, पनीर, टोफू, चीज़. सो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए. ये फर्स्ट ग्रेड ऑफ प्रोटीन है. उसके अलावा जो आपका लेंटिल्स है, लेग्यूम्स हैं, जो छोले, राजमा हैं, सारी दालें आती हैं, ये सारे आपके सेकेंड ग्रेड हैं जो आपको कंबाइन करने चाहिए अपने फर्स्ट ग्रेड ऑफ प्रोटीन के साथ में. बट आपको दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. तो सिर्फ रोटी और सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो आपको उसमें प्रोटीन का जो इंटेक है वो ओवरऑल कम हो जाता है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इन हर डाइट. अदरवाइज हर डाइट लुक्स वेरी वेरी हेल्दी, हर डाइट लुक्स वेरी बैलेंस्ड. एंड येस, राइस खाने से कोई मोटा नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट. इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज, गो एंड चेक आउट दिस वीडियो अप हियर वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ग्रेट डिटेल कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, आप उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. दिस इज ऑल आई हैड टू से. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद व्हाट सेजल कुमार हैज डन ऑन यूट्यूब एंड ओवरऑल शी हैज made a lot of achievements in her life and I really congratulate her for this. Till the next video comes, stay fit, stay healthy and I'll see you.
बाय बाय।